Delhi's air quality has dropped to the very poor category, recording an overall AQI of 309. Meanwhile, the air quality in Noida is also in the same category of very poor, but the AQI recording is at 372. Meanwhile, the air quality index in Gurugram is recorded at 221 and is in the poor quality. With the deteriorating figures, the larger question that now arises is how will the government tackle this critical situation? We can in fact see visuals of the smog that has enveloped the national capital. These are visuals on your screen from the Bharat Mandapam. There is of course a parali that is being burnt in and around in Haryana and Punjab, due to which the particles are carried over to above the national capital. But joining us on the broadcast are Akshat Gupta, Mahinder Mahi and Rajiv Mishra. I would first like to go across to my colleague Akshat, who is joining us live from the national capital itself. Akshat, the AQI has been recorded at 309 in New Delhi. How is the situation like? Can you show our viewers what's it like on ground? Well, I come to you from the flyover of Punjabi Bagh in the national capital, and as we know, the air quality has plummeted to very poor category from poor category in the national capital, and for the last 1 week it has been slipping down only because of the unfavorable meteorological conditions, and of course one of the major causes still remains the stubble burning. Well, if I can just show you the data also perhaps, then you can also see in the app that today also it's more than 240, AQI is 240, which is perhaps very unhealthy for all the people who are stepping out of their homes. And if we just pan around our camera also, then the rise of pollutants of course can be felt in the air, in the atmosphere, which is really hazardous. And this situation perhaps is quite palpable around Diwali every year, and Delhi Heights have to bear the brunt of the pollution menace every year. Yesterday also AQI slipped to around 303 after the city recorded the lowest temperature around 14.3 degrees Celsius, 2 notches below the city's average temperature in the month of October. So of course experts also suggest that the calm winds and the accumulation of the pollutants has led to the rise in the pollution level, the air quality index, and even today also it's around 250. Of course it still remains in the very poor category, but when we talk about the steps and the efforts taken up by the Delhi government, then of course yesterday also we witnessed that Delhi Environment Minister Gopal Rai has been effectively launching the campaign Red Light On, Gaadi Off, which of course further motivates people to switch off their cars when red light is on, so that the vehicular pollution can be curbed, because it is also one of the major sources of the rising air pollution in the national capital. And of course the graded response action plan stage 2 has already been invoked, in which parking fees is hiked so that people are encouraged more to use public vehicles instead of their private vehicles, and also use electric and CNG buses, so that pollution can actually be curbed in the national capital. So of course these are the measures which are taken up by the government, but still the pollution levels are on the rise because of the stubble burning, because this time reports also suggest that around 2,500 incidents of stubble burning have been recorded, which is of course less than previous 2 years, which recorded around 5,000 cases, but still it prevails in the western part of India, Haryana and Punjab. Of course many farmers are trying to turn to different methods so they don't have to burn the paddy straw, but still it prevails in the western part of India, and it will be important to see as to when can Delhi Heights actually heave a sigh of relief from the rising air pollution. Indeed, and Akshat, the AQI recorded in Noida is even worse, and joining us from Noida is our colleague Mahinder Mahi. Mahinder, नोएडा में स्थिति कैसे है? प्रदूषण बहुत है अभी,
the air particles, the 2.5 PM particles are in the air. It is very hazardous for the individuals living in the region. What can you show our viewers? What's the situation like on ground? जी, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा की स्थिति भी दिल्ली की तरह है। और यहाँ नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा, यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से लेकर 350 है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में है। कल के मुकाबले अगर आज देखा जाए तो आज ज्यादा पॉल्यूशन है। संडे का वक्त है और उसके बावजूद जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं और उनको आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ बात करें कि आखिर इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कर क्या रही है, तो वो जो तमाम सड़कें हैं जहाँ धूल मिट्टी जमी रहती है, ये जहाँ हॉटस्पॉट एरिया है जिनको चिन्हित किया गया है, वहाँ एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो वाटर टैंकर है उससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और हर साल की तरह इस साल भी नोएडा ने दिल्ली को पछाड़ा है पॉल्यूशन के मामले में। अगर दिल्ली में जो पॉल्यूशन हमने देखा जो 250 के आसपास है, वही अगर नोएडा में आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो नोएडा की स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर बनी हुई है। नोएडा की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 320 पहुंच गई है और ग्रेटर नोएडा ये 350 क्रॉस कर गई है, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को शिकायत ये मिल रही है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बाहर हम निकल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए सुबह का वक्त है मगर उसके बावजूद भी आपको हल्का पॉल्यूशन दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो सामने जो बिल्डिंग है वहां भी आपको हल्का हल्का पॉल्यूशन दिखाई देगा। और ये एहसास दिलाता है कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो गैस का चैम्बर में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जहां एक आदेश आया है कि ग्रैब 2 लागू होने के बाद जो इमारतें हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको ढका जाएगा, मगर सामने आपको एक इमारत दिख रही होगी, ये एक बड़ी इमारत बन रही है 12 मंजिला इमारत, इसको अभी तक नहीं ढका गया। और इसी के चलते जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों पे आपको धूल मिट्टी अभी भी उड़ती दिखाई देगी। और जो अधिकारियों का कहना है कि हम लोग एक्शन प्लान कर रहे हैं, यानी कि हम जो जितने लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद नहीं कर रहे या जिन्होंने कवर नहीं किया उनका हम चालान कर रहे हैं। ये बस केवल एक खाना पूर्ति है। मगर अभी भी नोएडा एनसीआर ये तमाम आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ ऐसे सैकड़ों बिल्डर्स हैं जो धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो भी नियमों को ताक पर रखकर, जिसके चलते देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक जहरीली क्षेत्र का एक हब बन चुका है। लगातार यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी समस्या है पराली की। आज देखिए अगर आप ग्रेटर नोएडा जेवाई की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो किसान है वो पराली जलाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि हम पे कोई सरकारी मदद नहीं मिली। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि सारी सुविधाएं किसानों को दी जाए, तमाम वो चीज मुहैया कराया जाए जिससे वो पराली ना जलाए। मगर अधिकारी हैं ग्राउंड पर जाते नहीं, जिसके कारण जो किसान है वो पराली जलाने को मजबूर हो रहे हैं। मगर एक अच्छी बात यह भी है कि अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस बार जो पराली जलाने की संख्या है उसमें काफी कमी आई है। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक आंकड़ा है 10 में से 5 किसान पराली जला रहे हैं और 5 अपना डिकम्पोज कर रहे हैं, जो कि खेती के लिए भी अच्छी होती है। मगर देखिए इतना काफी नहीं है पॉल्यूशन कम करने के लिए। जो ग्रैब 2 पूरे एनसीआर में लागू हुआ है उसके जो नियम है उसको लेकर जो अधिकारी है वो सख्त दिखाई नहीं दे रहे। संडे का वक्त है, आप अगर सड़कों पे आज भी जाएंगे तो आपको धूल मिट्टी उड़ती नजर आएगी। तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां बिना नियमों के ताक पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बिना कवर किया जा रहा है। और जो वाटर टैंकर है, जो एंटी स्मोक गन है, उसकी संख्या ना के बराबर है। यानी कि आप सोचिए इतने बड़े शहर में अगर 4-5 वाटर टैंकर होते हैं और 1-2 एंटी स्मोक गन होते हैं तो उससे क्या ही हो सकता है। जिला अस्पताल की बात करें, यानी कि अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ जो संख्या है मरीजों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और डॉक्टरों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस टाइम वो पेशेंट आ रहे हैं जिनको दमा की तकलीफ है, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा कि देखिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं और सुबह के और शाम के वक्त जरूर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए सुबह के वक्त अक्सर आप देखेंगे कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली आसपास के किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है।
और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए हर साल जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, ये हर साल वादे करती है कि इस बार हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे या नोएडा को पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ दिखता नहीं। दिल्ली की जो जनता है, नोएडा की जो जनता है, वो जहरीली हवा लेने को मजबूर हो रही है, क्योंकि उन पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अधिकारियों के घर पे और दफ्तरों में तो एयर प्यूरिफायर लगा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, मगर आम जनता इतनी चीजें एफर्ट नहीं कर सकती, जिसके बाद उनको जहरीली जो हवा है वो लेने में वो मजबूर हो रहे हैं। सुबह के वक्त सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि देखिए सुबह जब सोमवार से लेकर शुक्रवार का दिन होता है, लोग अपने दफ्तर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि सुबह के वक्त ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पूरे नोएडा एनसीआर के क्षेत्र में देखा जाता है। जी Indeed, and also joining us is my colleague Rajiv Mishra. He's live with us from Ghaziabad. Rajiv, can you tell us what's the situation like in Ghaziabad at this time? जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खराब है, 400 के पार जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से खासा जो नुकसान है वो वृद्ध लोगों और बच्चों को ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सभी लोग सुबह सुबह दफ्तर निकलते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको खासा इस चीज का सामना करना पड़ता है। लगातार जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और जो धूल मिट्टी होती है, उसकी वजह से खासा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। जिस तरह से गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में इस समय एयर क्वालिटी जो है 400 के पार जा रही, जो बेहद जहरीली हवा में गिनी जाती है। और जहरीली जो हवा है वो खासकर बच्चों और बुजुर्गों, हालांकि वो तो सभी के लिए जहरीली होती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा असर डालती है, क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो अपने अपने जो वॉकिंग के लिए निकलते हैं, जो सुबह पार्क में टहलने के लिए निकलते हैं, खासकर उनको भी ये नहीं पता है कि जब वो पार्क में टहलने के लिए जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए जा रहे हैं, उसके हवा लेने से उनका स्वास्थ्य जो है खाता जो दिक्कत में आएगा, ये उनको नहीं पता है। क्योंकि उनको यही जानकारी है कि जब वो जाएंगे टहलेंगे तो उनका स्वास्थ्य सही होगा, लेकिन उनके इसकी वजह से क्योंकि बाहर की जो हवा है वो इतनी जहरीली है कि सांस जब लेंगे तो उससे उनको उल्टा नुकसान ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है कि गाजियाबाद में कि जो एयर क्वालिटी है जो काफी डाउन है और उसकी वजह से सभी लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। और कहना चाहिए कि खासकर जो डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जरूर जारी की है यहाँ गाजियाबाद में कि वृद्ध लोग अपने घरों में ही रहें। हालांकि ये निकलना तो पड़ता ही है, जो लोग हैं, कुछ लोग दफ्तर जाते हैं, जो कामकाजी लोग हैं। मैं मतलब बता दूं, गाजियाबाद से लाखों लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठ के दिल्ली के में अपना रोजगार के तलाश में जाते हैं, तो खासकर सुबह सुबह उनको निकलना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को खासा नुकसान देखने को जरूर मिल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.